Good evening everyone. How are you? I'm fine and I hope that you all be fine. So today I'm moving towards next video, that is from civics, and this video is for class 10th. Okay. The chapter is chapter 1, power sharing, and the topic is why power sharing is desirable. So you all know about power sharing means to share power in all organs of government: legislative, executive, judiciary. Okay, so you know what is power sharing, why it is important in democracy, because if there is power sharing in democracy, then we can say that that is democracy. Otherwise we can't say, because if there is power sharing, then there will be no any conflict. Okay, so first of all, that you are saying here reason for why power sharing is good for democracy. So what is the reason that there should be power sharing in democracy? So according to your chapter, there are two sets of reason. First of all, what is the reason of democracy? What is the reason of power sharing in democracy, or why power sharing is good for democracy? Okay, so if there will be power sharing, then there will be no any conflict, as you know. Okay, and if there are more than one community in any country, so there that would be good for that country. Okay, so as you know, and I told you in previous video about Belgium and Sri Lanka, so you can see what are the things in Belgium. In Belgium there are different communities, there are different language speaking person, but in Belgium you can see there is power sharing. And in Sri Lanka there are also some communities, but there you can see that majoritarianism means according to majority everything would be happen. Okay, so this was the power sharing in Belgium and Sri Lanka. So if you understand, or if you understood about Belgium and Sri Lanka, then you can also understand that why power sharing is necessary, why there is a desire for power sharing. इतना तो समझ आ ही गया होगा आप लोगों को. जब तक आप पावर शेयर नहीं करेंगे तो वहाँ पर किसी भी कंट्री में पावर शेयर किए बिना अगर एक से ज़्यादा कम्युनिटी है, तो वहाँ पर जो पीसफुल, जो चाहते हैं ना कि पीसफुली मैनर हो, सारे अकॉर्डिंग टू विल वर्क करें, ऐसा हो, तो वो पॉसिबल नहीं है. ओके, और डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मीन्स अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल. तो अगर पावर शेयरिंग होगा ही नहीं तो फिर कैसे वहाँ पर डेमोक्रेसी यू कैन से. ओके, सो दैट्स वाई हियर आर द टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर democracy. So first is, it helps to reduce the conflict between social groups. I will tell you after this what are the name of these two reasons. Okay, first of all I will explain it. So power sharing is good because it helps to reduce the conflict between social groups. मीन्स पावर शेयरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हर एक डिफरेंट ग्रुप जो होते हैं, सोशल ग्रुप्स जो होते हैं किसी भी कंट्री में, अगर उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसे रिड्यूस करना है, देन देयर शुड बी पावर शेयरिंग. दिस इज़ द फर्स्ट सेट्स ऑफ रीज़न इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. ओके, एंड कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल डिसऑर्डर. यहाँ पर आप सेकंड देख रहे हैं, फर्स्ट में ही मैंने हैश टाइप का दिया है ना, तो वो फर्स्ट में ही सारा आएगा. कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल डिसऑर्डर. और अगर कोई कंट्री है जहाँ पर पावर शेयरिंग को अडॉप्ट नहीं किया गया, तो उससे क्या होगा, हर एक कम्युनिटी चाहेगी कि उसको भी पावर शेयर किया जाए उसके साथ, और अगर नहीं होगा तो फिर वो पावर शेयर करने के लिए टाइम टू टाइम कोई ना कोई डिमांड करती रहेगी, जस्ट लाइक श्रीलंका. नेक्स्ट इज इम्पोजिंग विल ऑफ मेजॉरिटी अफेक्ट द इन यूनिटी. मीन्स अब अगर कोई कंट्री है वहाँ पर मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ओके, सो अगर वो अपनी जो अपने अकॉर्डिंग जो विश है अगर वो वहाँ पर इम्पोज करती है, तो
it would be better only for short period. But if we talk about long time, then there would be what, or there should be power sharing. Because if there would be this type of thing means will of majority community, then you can see the affect the unity of nation. मीन्स वहाँ पर क्या होगा, जो नेशन की जो यूनिटी है उस पर उसका इफेक्ट होगा. और इसीलिए इफ़ यू टॉक अबाउट बेल्जियम दो, सो बेल्जियम लीडर्स जो थे उन्होंने क्या किया, कंट्री में पूरी पीसफुल हो प्लस वहाँ पर यूनिटी बनी रहे, तो उसके लिए उन लोगों ने पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया. और वो आपने देखा भी कैसे अडॉप्ट किया, कैसे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. बस श्रीलंका में क्या किया गया कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी बेस पर सारे पावर मेंशन किए गए, जिससे क्या हुआ कि टाइम टू टाइम वहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता गया. एंड नेक्स्ट इज टिरानी ऑफ मेजॉरिटी ऑप्रेसिव फॉर एवरीवन. अब यहाँ पर टिरानी, दिस इज़ न्यू वर्ड फॉर यू. ओके, सो व्हाट इज़ टिरानी? एब्सोल्यूट रूल और क्रूएल एंड ऑप्रेसिव गवर्नमेंट. मीन्स जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्रूएलिटी के साथ ऑप्रेसिव वे में अपने अकॉर्डिंग जो करना चाहती है वो करती है, दैट इज़ टिरानी. तो अगर टिरानी ऑफ मेजॉरिटी है मीन्स मेजॉरिटी अपने अकॉर्डिंग सारे वर्क करती है, तो वहाँ पर क्या होगा, दैट वुड बी ऑप्रेसिव फॉर माइनॉरिटी. बट सिर्फ ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी के लिए ये ऑप्रेसिव होगा, ये मेजॉरिटी के लिए भी ऑप्रेसिव होगा. मीन्स मेजॉरिटी को भी ये डिस्ट्रॉयड कर देगी. क्योंकि कब तक वहाँ पर कोई मेजॉरिटी की जो विश है या उसकी अकॉर्डिंग कुछ भी करते रहेंगे, कुछ टाइम बाद क्या होगा, वहाँ पर स्ट्रगल होगा. और फिर जैसा आप लोगों ने देखा प्रीवियस में, हिस्ट्री में भी देखा कि एक टाइम के बाद सब क्या किया, सब ने रिवॉल्ट कर दिया अगेंस्ट गवर्नमेंट. वहाँ पर किंग होते थे तो किंग के अगेंस्ट कर दिया, या डायनेस्टी सिस्टम है या एम्पायर है, कुछ भी है तो उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट हुआ. तो अगर टिरानी वहाँ पर होगा, एब्सोल्यूट रूल होगा, तो वो ना तो मेजॉरिटी के लिए हेल्पफुल होगा और ना ही मेजॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों के लिए वो हेल्पफुल नहीं होगा. So okay, so it was the first reason that through this we can reduce the conflict between social groups. Now come to second. What is second? Very spirit of democracy. This is a question also, that power sharing is the very spirit of democracy. तो मैं 2-3 लाइन इसके बारे में बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, बहुत अच्छे से आप लोग सुनिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. ओके, सो वेरी स्पिरिट which grants equal rights to each citizen and attempt to reduce the possibility of social friction among communities through peaceful solution of conflicts. मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो वेरी स्पिरिट कहा गया है, सॉरी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है. ओके, सो वेरी स्पिरिट मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो भी सिटीज़न इससे रिलेटेड हो सबको क्या होता है, इक्वल राइट्स ग्रांटेड होता है ना. कोई भी ये नहीं कि माइनॉरिटी में होगा मेजॉरिटी में होगा. ओके, एंड अटेम्प्ट टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ पर ऑफ सोशल फ्रिक्शन एमंग कम्युनिटीज़. अगर कोई भी कम्युनिटी है थ्रू पीसफुल सोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, मतलब कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है किसी भी सोशल ग्रुप में, कोई मेजॉरिटी है कोई माइनॉरिटी है, ये कम्युनिटीज़ हैं, है ना. तो उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको पीसफुल मैनर में उसका सल्यूशन देखा जाएगा, उसको रिड्यूस किया जाएगा जो कन्फ्लिक्ट है. ओके, सो दैट इज़ द वेरी स्पिरिट, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. And through power sharing, those who are affected by its exercise also involved in it. How? अब यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है. तो डेमोक्रेसी में आप लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू विश एंड पीपल हैव राइट टू नो दैट हाउ दे आर टू बी गवर्न, एंड मीन्स कि जो कंट्री में जो गवर्नमेंट है कैसे वो वर्क कर रही है ना, और कैसे उनको गवर्न किया जा रहा है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसे दी जाती है, सॉरी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को कहाँ से मिलती है, हाँ, तो गवर्नमेंट से मिलती है. बट
जब वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी तब, और डेमोक्रेसी में भी जो गवर्नमेंट है दैट वुड बी लेजिटिमेट देन. What is legitimate government? Means the type of government under which law and action of government are revealed to the people. Means ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या लॉ एंड ऑर्डर्स के थ्रू पास किया गया, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो पीपल हैं, उनके लिए रिवील कर दी जाती. जस्ट लाइक इंडिया वी कैन से दैट देयर इज़ राइट टू information, RTI. Through right to information we can get everything that is going on in the government. Means जो हमारे जानने के लायक होगा वो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी. Okay, so people can ask through participation and can be understood that what is the system. कि यहाँ पर क्या होता है, लोग समझ सकते हैं क्या हो रहा है सिटी सिस्टम में और क्या वर्क या फंक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन. Okay, so this was the second reason. Now I am going to tell you what is first and what is second. हम यहाँ पर दिया हुआ है, first set is prudential and second is moral. So जो रीज़न आप लोगों को सेट ऑफ रीज़न दिखा, ओके, सो जो सेट ऑफ रीज़न दिखा वहाँ पर क्या है, फर्स्ट इज़ प्रूडेंशियल. ओके, प्रूडेंशियल मीन्स पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स बिकॉज इफ़ वी शेयर पावर विद इन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी बोथ देन देयर विल बी नो एनी कन्फ्लिक्ट इन द कंट्री. मीन्स फर्स्ट रीज़न जो है वो क्या कहता है, प्रूडेंशियल मीन्स कंसल्टेट सबसे किया जाएगा, है ना, और बहुत ही जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कि क्या हो रहा है कंट्री में और कैसे, मीन्स अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है तो पहले से ही उसके लिए कोई प्लानिंग कर ली जाए, है ना. तो इसका जो आउटकम होगा उससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और जब कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी. एंड सेकेंड इज़ मॉरल रीज़न. व्हाट इज़ मॉरल? मीन्स मॉरल रीज़न टॉक अबाउट वैल्यू. वैल्यू because if there is democracy and it is necessary to be power sharing, through that people can understand system in better way. Means वैल्यू बेस पर यहाँ पर पावर शेयरिंग में अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर वैल्यू बेस पर बात की जाएगी अगर पावर शेयरिंग होगा तो, और अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा देन कांट वी से दैट इज़ डेमोक्रेसी. ओके, सो दिस वाज दिस टॉपिक. What was the topic? Why power sharing is desirable. तो अब आप लोगों को समझ आएगा होगा. वैसे मुझे लगता है कि ये चैप्टर इतना टफ नहीं है कि आप लोगों को उसमें कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ ना आई हो. ओके, एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर आपको इंक्लूड कर रही हूँ एज अ प्रैक्टिस शीट. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं और सारी चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है. बस एक यहाँ पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका. तो यहाँ पर सिमिलैरिटी बहुत ही माइनर सिमिलैरिटी, बहुत कॉमन सिमिलैरिटी आप कह सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर क्या है, आप चाहे तो एक भी इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, मोर देन वन भी लिख सकते हैं. तो फर्स्ट अगर एक आप फर्स्ट बात करें जो सिमिलैरिटी यहाँ पर है, वैसे तो आपको लगता होगा कि व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन, सिमिलैरिटी तो है ही नहीं, बट है. बोथ नेशंस फेस्ड एथनिक प्रॉब्लम. दोनों में ही आपने देखा एथनिक प्रॉब्लम है, कहीं पर उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया और कहीं पर सॉर्ट आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, है ना. सो दैट इज़. और अगर एरिया वाइज भी देखेंगे तो दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, बट ये ज़्यादा है कि जो एथनिक प्रॉब्लम दोनों में है वो दोनों सिमिलर है. ओके, सो दिस वॉज द टॉपिक वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छे से नोट्स बनाइए, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर वे में समझिए. ओके, थैंक यू.